Hello everyone. In this video, I am doing solution 6 of holidays homework class 9th NCERT pattern. Show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of square is also a square. So see, here I am drawing a square. This I have drawn a square and I am labeling it as A, B, C and D. Now, the midpoints P, Q, R and these are S. Now I am joining all the midpoints of this square. This is joined, this is joined, this is joined and this is joined. So we have to prove that this PQRS is also a square. Here we need to do one construction. You need to join AC and you need to join this BD also. Now let's start doing the solution. First, given. In given, you can write a square ABCD. A square ABCD. Full stop. P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. These are the midpoints. To prove, what we have to prove that PQRS is a square. PQRS is a square. So let's proceed now. Construction we have done. Join PQ, QR, RS, SP. Also join AC, BD. These also we have joined. Now we will do the proof. So when he has told a square, it has come into our mind that all the sides of the square are equal and each angle of the square is 90 degree. Now what we are taking? We are taking one triangle ABC. So in triangle ABC, in triangle ABC, P is the midpoint of AB. I am writing here P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. So in this triangle, we will apply midpoint theorem. By midpoint theorem, so by applying midpoint theorem, PQ will be parallel to AC and PQ will be equal to half of AC also. Right? So I can give it equation number 1 because this result will be used. Now I am taking other triangle in triangle ADC. So in triangle ADC, S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. R is midpoint of DC. By midpoint theorem, in triangle ADC, आप इसमें भी midpoint theorem लगाओगे. So SR will become parallel to AC and SR will become equal to half of AC also. और आप इसको इक्वेशन नंबर कर दो 2. अब 1 और 2 से, from 1 and 2. So you observe these. PQ parallel AC, SR parallel AC. तो प्रॉपर्टी लगेगी two lines parallel to the same line are parallel to each other. तो PQ will be becoming parallel to SR. इसको कंपेयर करो, हाफ AC इक्वल है, तो therefore PQ will also become equal to SR. अब
पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल हो गया, राइट। तो आप क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो एक पेयर पैरेलल और इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या बन गई, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आप लिख दो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। क्यों, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब आप यहां से ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो आई कैन राइट हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो, हाफ ऑफ ए बी को आप ए पी भी लिख सकते हो, पी बी भी लिख सकते हो, मैंने पी बी कर दिया। और बी सी के हाफ को आप क्या लिख सकते हो, बीसी के हाफ को आप सी क्यू भी, बी क्यू और सी क्यू कुछ भी लिख सकते हो। आई हैव रिटन सी क्यू। सो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। आई हैव डन। नाउ हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी को पहले पी बी लिखा था, राइट। अब आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी, दिस इज ए बीज हाफ। ए बी का हाफ क्या बनेगा, पी बी भी बनता है, ए पी भी बनता है, राइट। सो आई हैव रिटन हियर हाफ ऑफ ए बी एज ए पी ऑल्सो। और सी डी का हाफ, सी डी का हाफ इट इज आर क्यू ऑल्सो, आर सी ऑल्सो एंड डी आर ऑल्सो, राइट। सो यू कैन राइट आर सी। So AP is equal to RC. So these two things I have written. अब मैंने क्या करना है, ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल RCQ को लेना है। So इन ट्राइंगल PBQ and triangle RCQ, I will show you the figure also side by side. ये देखो, ये है PBQ, this is PBQ and RCQ is this. अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कैसे करोगे, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, PB इज इक्वल टू व्हाट, PB विल बी इक्वल टू RC। क्योंकि अगर आप AB और DC को इक्वल करते हो तो AB का हाफ PB है और DC का हाफ RC है। तो आई हैव रिटन PB इज इक्वल टू RC। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। इट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर। सो अनदर BQ, ये देखो फिगर में BQ विल बी इक्वल टू, BQ को किसके इक्वल करेंगे, CQ के। क्यों होगा BQ और CQ इक्वल, बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बिकॉज Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब एक और चीज आपको चाहिए, क्या, ये देखो PBQ एंगल इज 90 डिग्री, तो आपने PBQ लिख लिया। और दूसरा एंगल लिखोगे, एंगल RCQ या QCR कुछ भी लिख दो, RCQ ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी, SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल PBQ
has become congruent to triangle RCQ. Now both the triangles have become congruent. तो ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल RCQ के कॉन्ग्रुएंट होने से, ये देखो PBQ और RCQ, तो क्या PQ और QR CPCT से इक्वल हो जाएंगे? यस, PQ विल बी इक्वल टू QR एंड यू कैन राइट इट बाय CPCT. अब आपने पहले क्या निकाला था, ये देखो PQ और SR इक्वल थे और यहां PQ और QR इक्वल है. तो सिंस PQ was earlier equal to SR and just now you have found PQ is equal to QR. आप इसको इक्वेट कर दें तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. PQ is equal to QR is equal to SR. PQ is equal to QR is equal to SR. So see here, PQ is equal to QR is equal to SR. So PQRS is a parallelogram, but PQRS is a parallelogram. तो parallelogram में both pairs of opposite sides are parallel and equal. तो you can see this QR is equal to SP also, QR is equal to PS also. तो आप इसको कोई नंबर दे दो, जैसे 3 नंबर दे दिया और इसको दे दिया 4, तो 3 और 4 को इक्वेट कर दें फ्रॉम 3 and 4. So PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. यानी आपने इसकी चारों साइड्स इक्वल कर दी क्वाड्रिलेटरल PQRS की, राइट. अब फिगर को देखो, PQ एंड AC वर पैरेलल बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो अगर PQ और AC पैरेलल थे तो आप ये यहां पर एक पॉइंट दे दो M, दिस इज M पॉइंट, और M यहां पर दिया और इसको आप N पॉइंट दे दो, दिस इज N पॉइंट, राइट. यहां O है जहां पर वो बाइसेक्ट कर रहे थे. तो इफ PQ इज पैरेलल टू AC, तो MP विल बी पैरेलल टू व्हाट? MP विल बी पैरेलल टू ON, राइट. तो मैंने यहां पर लिख दिया सिंस PQ is parallel to AC. बिगिनिंग में किया था when we have applied midpoint theorem. Therefore, I am showing the figure again. PQ is parallel to AC, so PM will be parallel to ON. PM will be parallel to ON or NO, anything you can write. अब P किसका मिड पॉइंट था? AB का. And S is the midpoint of AD. P is the midpoint of AB and तो अगर हम ABD ट्राइंगल में फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो PS जो है वो BD के पैरेलल हो जाएगा. तो यहां पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD, P is midpoint of AB and S is midpoint of AD. Which theorem will be applied? Midpoint theorem. By midpoint theorem, तो midpoint theorem से क्या होगा, ये देखो PS will become parallel to BD, right. PS will become parallel to BD. अगर PS और BD पैरेलल है तो PN और OM भी पैरेलल हुए, तो therefore PN will be parallel to OM also, right. मैं इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को बॉक्स में डाल दे रहा हूं, राइट. अब क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल PMON, अब ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल था कौन? PMON या POMN कर दो, सीक्वेंस में लिखो PMON.
तो PMON में ये दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के, PM इज पैरेलल टू ON एंड PN इज पैरेलल टू OM, तो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैव बिकम पैरेलल। तो अगर पैरेलल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि PMON इज अ पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन इक्वल हो चुकी, दैट PMON इज अ पैरेललोग्राम। अब ये देखो MPN एक एंगल ये है, MPN और MON, आई एम शोइंग दिस विद रेड पेन सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। नाम है इसके MPN, MPN और दूसरे एंगल का नाम है MON। दे आर इक्वल बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आई एम राइटिंग हियर MPN इज इक्वल टू एंगल MON, और रीजन भी कर सकते हो आप, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, these are opposite angles of parallelogram and they are equal। अगर ऐसा है तो MPN this angle is equal to BOA, BOA इसके इक्वल, राइट। सो आई कैन राइट एंगल MPN इज इक्वल टू एंगल BOA। अब आपने MON को BOA क्यों लिखा, क्योंकि MON और BON एक ही चीज है। MON इज इक्वल टू एंगल BOA। रीजनिंग आपने जरूर साइड में करनी है सो दैट द थिंग्स बिकम क्लियर। अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, राइट। AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये देखो दिस इज AC and this is BD। Diagonals of square always bisect each other at 90 degree। तो आप क्या लिखोगे, सिंस एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप रीजन लिख सकते हो यहां पर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर लिख दो, बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर BOA 90 डिग्री हो गया तो देयरफॉर एंगल MPN भी 90 हुआ। अब फिगर में देखो भी MPN है कहां पर, MPN ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर पैरेललोग्राम में आप मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया और आपने साइडें पहले ही सारी इक्वल प्रूव कर दिया, सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, राइट। और इसके अलावा आपने अभी क्या प्रूव कर दिया, एंगल दिस MPN एज 90 डिग्री, राइट। तो MPN को QPS भी बोल सकते हैं, तो QPS इज इक्वल टू MPN, एक ही बात है। यू हैव प्रूव्ड दैट वन एंगल इज 90 डिग्री, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। देयरफॉर ABCD इज नॉट ABCD, PQRS is a square, therefore PQRS is a square। Question is lengthy, need to be practiced step by step and by giving all the explanations, all the reasons in the bracket। Thank you।